Assalamu alaikum beta. In this video lecture I will deliver the lecture on bullous disorders, that are blistering or you say bullous disorders of skin. Okay, before I starting this lecture I must mention the entire lecture is from your textbook Robbins. Okay, this is probably the first lecture of your pathology skin part. So let's start with this is the beta bullous, the topic on bullous disorders of skin, or you may say blistering disorders. Okay, in which what happens on your skin, blisters appear. What happens on your skin? Blisters appear. Now you know beta, if you are very much familiar to basic layers of skin, then you know that blisters may be vesicles or they may be bulla. Okay, vesicles, blisters are called vesicles when they are smaller, and they are called bulla when they are little larger. They are around 1 centimeter, if I am not wrong, 1 centimeter or less, and when they are more than 1 centimeter they are called bulla. Okay, so I hope you now know that this topic is kind of topic in which skin is going to develop blisters. Okay, either vesicles or bulla. Yeah, so it may be beta inflammatory or non-inflammatory. Blisters on the skin which show inflammation, and another type is non-inflammatory bullous disorder. Okay, the type which obviously does not show any inflammation. Okay, so in this video I'll deliver the inflammatory blistering disorders of the skin. Inflammatory, okay, and probably will record the non-inflammatory in the second part. So let's start with the inflammatory blistering or bullous disorders. Okay, and this inflammatory bullous disorder of the skin includes, let me quickly tell you, even here I can mention that inflammatory के अंदर 3 conditions आती हैं जो कि आप पढ़ेंगे. एक है बेटा पेम्फिगस, व्हाट, पेम्फिगस. दूसरा है बुलस पेम्फिगोइड, और तीसरा है डर्माटाइटस हर्पेटिफॉर्मिस, ओके. दीज आर द थ्री inflammatory blistering disorders of the skin. Okay, and in the later lecture I will cover the non-inflammatory bullous disorders. Okay, जिसमें epidermolysis bullosa आ जाएगा, और उसके अलावा एक और condition आ जाएगी like porphyria. Okay, so now let's start with the inflammatory bullous disorders of the skin, जिसमें हम सबसे पहले पेम्फिगस को डिस्कस करेंगे. ठीक है बेटा, बिफोर आई डिस्कस पेम्फिगस एंड देन बुलस पेम्फिगोइड एंड डर्माटाइटस हर्पेटिफॉर्मिस, on this same slide I need to explain you a little about the anatomy of the skin. Then you can have better understanding of this topic, pemphigus and on. Yeah, a little about the anatomy. You can see beta, if I just further zoom into it, but okay, but yeah, that's better. You can see here the skin beta. This is, you can say, the entire anatomy histology of skin. This from here till here is your epidermis. Okay, and these two layers are making up your basement membrane, and then below this basement membrane is going to be obviously dermis, and then hypodermis, subcutaneous tissue. Okay, in this epidermis, can you see beta how many layers are there? At the very top is the stratum corneum, then is stratum granulosum, and then is stratum spinosum, and then stratum basal, या फिर इसको हम basal cell layer भी कहते हैं. Okay, and below this basal cell layer is this basement membrane. basement membrane की भी 2 layers होती हैं further, जो कि epidermis की तरफ होती है उसको हम कहते हैं lamina lucida, और जो नीचे dermis की तरफ होती है उसको हम कहते हैं lamina densa. ठीक है, and below this basement membrane is डर्मिस, और डर्मिस के लिए भी मैं आपको ऐसे बता दूं कि इसकी 2 लेयर्स होती हैं, पेपिलरी डर्मिस और रेटिकुलर डर्मिस. ठीक है, पेपिलरी डर्मिस और रेटिकुलर डर्मिस, और डर्मिस के नीचे बेटा फिर हाइपोडर्मिस. कैन यू सी बेटा इन दिस एपिडर्मिस दैट देयर आर 4 लेयर्स, एंड इन ऑल दीज 4 लेयर्स the cells are united together, they are close together, and they are held together by some junctions. Even if I can show you in this layer, stratum spinosum, in this stratum spinosum, can you see the cells are very much polyhedral, multiple angles, and 2 cells are linked together by this junction, blue colored junction,
Between every cell there is a junction. This is the intercellular connection between two cells, and this junction is actually holding two cells together very much tightly. And what type of junction is this? This is desmosomes, beta. Okay, desmosomes. And you know what, beta, this desmosome is made up of so many proteins like desmoglein, desmocolin, plakophilin, plakoglobin, desmoplakin, and keratin. These are 1, 2, 3, 4, 5, 6 proteins that make up a single desmosome. And what does this desmosome do? It actually holds two cells together. Okay. But out of these 6 proteins, desmoglein is very important protein. Okay. Which makes up most of the desmosome. But I have to tell you something about this desmoglein, beta. Two types of desmoglein are there, desmoglein 1 and desmoglein 3. Can you see, beta? Look, desmoglein 1 is abundant at the top of the epidermis, and desmoglein 3 is abundant at the bottom of the epidermis. Okay, if I show you this is the desmoglein 1. This is the desmoglein 1. Can you see it is very much abundant at the top, and at the bottom it has tapered. बहुत कम है desmoglein 1 at the bottom of the epidermis. इसके comparison में आप अगर ये देखें, this is desmoglein 3. Yeah. Can you see, beta? This is desmoglein 3. It is very much abundant at the bottom and बहुत कम है स्किन की ऊपर वाली लेयर्स में. सही है. तो बेटा it is actually the desmosome which is holding two cells together, and desmosome is made up of so many proteins, out of which desmoglein is very much important. The type of desmoglein which is very much abundant at the top और बहुत कम है बॉटम पे, वो desmoglein 1 है, DSG 1. और बेटा जो DSG जो है 3 है वो बॉटम पे ज़्यादा abundant होती है और ऊपर कम होती है. ठीक है. Okay, so it is desmosome that actually connects two cells in the epidermis. Okay, can you see, beta, this basal cell layer? What is just beneath this basal cell layer is this basement membrane. Okay, can you see these green colored junctions? These are the junctions which are actually connecting the basal cell layer to the lamina lucida of the basement membrane. Can you see these green colored junctions? Do you know what are they called? These are not hemidesmosomes. Sorry, they are not desmosomes. Desmosomes are these structures which are connecting the epidermal cells with each other. Okay, two epidermal cells are connected with each other by desmosome. And you know what this junction is called, beta? This is hemidesmosome, which is connecting the basal cell layer to basement membrane. Okay, this is hemidesmosome. And you know, beta, what is the very important protein of hemidesmosome? Hemidesmosome is actually made up of two important proteins, BAPAG1 and BAPAG2. Okay, and what is the function of this hemidesmosome which is having BAPAG1 and BAPAG2? It links basal layer of the epidermis to basement membrane. Okay, clear. Now further, can you see, beta, this basement membrane is connected to this dermis through these fibrils. Can you see these fibrils, little fibrils coming out of basement membrane? These are called anchoring filaments. Okay, and they are linking the basement membrane to what is below basement membrane? Dermis. Okay, so these are the anchoring filaments which are connecting the basement membrane to the dermis. Okay, now I think we are clear a little about the anatomy of this skin histology part. And if you have a good knowledge about whatever I just discussed, if you have understood it very well, pemphigus is just going to be a piece of cake, my son. Okay, let's start with what? बुलस डिसऑर्डर्स ऑफ द स्किन, स्पेशली द इन्फ्लामेटरी बुलस डिसऑर्डर्स, जिसमें से भी सबसे पहले हम पेम्फिगस डिस्कस करेंगे. बेटा, पेम्फिगस इज द कंडीशन इन विच व्हाट हैपन्स, ऑटो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट इंटरसेल्युलर अटैचमेंट्स विद इन द एपिडर्मिस एंड म्यूकोजा, leading to formation of blisters. Let me tell you what happens, beta. Can you see, beta, these intercellular adhesion molecules which we just discussed? In case of pemphigus, what happens? Autoantibodies are produced against these intercellular attachments. ये intercellular attachments है ना desmosomes, इनके खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं. और जब इन पेम्फिगस के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज़ बनेंगी, सॉरी, इन डेस्मोसोम्स के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज़ बनेंगी, तो दे विल बी डिसरप्टेड. और जब ये डेस्मोसोम नहीं रहेंगे बेटा, तो क्या होगा? डू यू थिंक टू सेल्स विल बी हेल्ड टुगेदर एनी मोर? नो, टू सेल्स विल बी सेपरेटेड.
और जब ये सेल सेपरेट हो जाएंगे तो बीच में स्पेस बन जाएगी जिसमें फ्लूइड जमा हो जाएगा और एक ये ब्लिस्टर बन जाएगा। अगर स्मॉल होगा तो उसको वेसिकल कहेंगे, बड़ा होगा तो उसको हम बुल्ला कहेंगे। ओके ओके, even I can explain you this way as well. Can you see beta, these are two epidermal cells, one cell, another cell. Okay, these are two epidermal cells, and you know very well these two epidermal cells are held together by this nice little junction called desmosome. अगर इस डेस्मोसोम के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडी बने तो क्या होगा, दोनों सेल्स अलग अलग हो जाएंगे और बीच में स्पेस जमा हो जाएगी। आपने क्या देखा कि दोनों सेल अलग हो गए और दोनों सेल अलग होने के साथ साथ इनकी जो पॉलीहेड्रल शेप थी वो भी लॉस हो गई और ये मज़ीद सर्कुलर बन गए। और जब ये अलग हो गए तो बीच में स्पेस जमा हो गई, इसमें फ्लूइड भर जाएगा और ये एक आपका वेसिकल बन जाएगा या बुला बन सकता है। ठीक है, सो इट इज़ द फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर। इफ़ इट इज़ स्मॉलर कॉल्ड वेसिकल, इफ़ इट इज़ लार्जर कॉल्ड बुला। So beta, what happens in pemphigus? Autoantibodies are produced against intercellular attachments within epidermis and in mucosa, leading to separation of the cells and formation of fluid-filled blisters. Okay, और ये खास करके बेटा 4th to 6th डिकेड में ये डिजीज़ कॉमन होती है। फीमेल और मेल्स में इसकी इंसिडेंस बराबर है। ठीक है, अब ज़रा हम बात करते हैं इस पेम्फिगस की टाइप्स की। ओके, देयर आर सम टाइप्स ऑफ पेम्फिगस, लेट मी शो यू क्विकली। Yeah, some types of pemphigus. At number one is beta, yeah, variants of pemphigus. Let me tell you. Number one is pemphigus vulgaris. Okay, pemphigus vulgaris is the most common type, by the way, up to 80% type. In most of the cases of pemphigus, you see patient comes with the pemphigus vulgaris. Okay, if they come with pemphigus, so it is going to be vulgaris most of the times, up to 80%. Okay. बेटा व्हाट हैपन्स, पेम्फिगस का कॉन्सेप्ट तो हर टाइप में सेम ही है ना। पेम्फिगस के ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं और जो सेल्स के बीच में जंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेल्स सेपरेट हो जाते हैं, बीच में ब्लिस्टर बनते हैं। दे कैन बी वेसिकल, दे कैन बी बुल्ला। सो बेटा पेम्फिगस वल्गारिस के अंदर क्या लयन बनता है, बहुत छोटे ब्लिस्टर्स वेसिकल भी बन सकते हैं या फिर बड़े ब्लिस्टर बुल्ला भी बन सकते हैं। ठीक है, और ये मैं बता दूं इसके जो ब्लिस्टर होते हैं बेटा पेम्फिगस वल्गारिस के, वो इजीली रप्चर कर जाते हैं। ठीक है, रप्चर करने के बाद उनके अंदर जो फ्लूइड होता है वो ऊपर ही ड्राई हो जाता है और ऐसे क्रस्टेड लगता है। ठीक है, उसके अंदर जो फ्लूइड होता है, सीरम हो सकता है, ब्लड हो सकती है, वो जब फटते हैं ब्लिस्टर तो उनमें से जो फ्लूइड निकलता है, सीरम और ब्लड, वो उधर ही वहाँ पे बेटा ड्राई हो जाती है, क्रस्टेड हो जाती है। ठीक है, मैं आपको क्विकली ज़रा इसकी पिक्चर दिखाता हूँ पेम्फिगस वल्गारिस की, जिसमें आप देखेंगे कि कहीं पे छोटे ब्लिस्टर्स हैं जिनको वेसिकल कहते हैं, कहीं पे बड़े ब्लिस्टर हैं जिनको बुल्ला कहते हैं, और कुछ तो रप्चर हुए हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये रैपिडली रप्चर कर जाते हैं, ईजिली रप्चर कर जाते हैं, और फिर उनमें से जो पानी निकलता है, जो फ्लूइड निकलता है, सीरम और ब्लड, वो वहीं पर क्रस्टेड हो जाता है, ड्राई हो जाता है। ओके, आई हैव अ पिक्चर फॉर यू, होप इट इज़ वेरी गुड पिक्चर। या इट्स रियली अ वेरी गुड पिक्चर। या इसमें मैं तीनों चीज़ें दिखा सकता हूँ। ये देखें बेटा, ये छोटे वेसिकल्स दिख रहे हैं आपको, ये छोटे वेसिकल्स हैं। ठीक है, छोटे वेसिकल्स हो गए, ये बड़ा बुल्ला हो गया। ठीक है, अ लिटिल लार्जर बुल्ला। एंड व्हाट इज़ दिस, ये वो जगह है जहाँ पे ब्लिस्टर्स रप्चर हो चुके हैं और उनके अंदर से जो पानी निकला था, जो फ्लूइड निकला था, जो सीरम था, जब वॉट एवर इट वॉज ब्लड, वो वहीं पे क्रस्टेड हो गई है और ड्राई हो गई है। ठीक है, सो बेटा दिस इज़ द टिपिकल पिक्चर ऑफ पेम्फिगस वल्गारिस। कहाँ पे होता है साइड्स बेटा, ये म्यूकोजा पे भी हो सकते हैं और स्किन पे भी हो सकते हैं, लेकिन मैं बताऊँ कि पहले ये म्यूकोजा पे डेवलप होते हैं। म्यूकोजा पे डेवलप होने के तकरीबन 1-2 महीने के बाद ये जो है स्किन पे भी मैनिफेस्ट होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, म्यूकोजा में बनते हैं और ओरल अल्सर्स कराते हैं म्यूकोजा पे, and they persist for months before the skin involvement. So the pemphigus vulgaris develops first on the mucosa and few months later it may manifest on the skin as well. Okay, the picture I showed you, okay, the picture I showed you, yeah, this is the okay manifestation of pemphigus vulgaris on the skin obviously. And where on the skin, scalp पे, फेस पे, एक्जिला में, ग्रोइन में, ये ट्रंक की पिक्चर है ऑब्वियसली। ठीक है, ट्रंक पे, और जो बॉडी में पॉइंट्स ऑफ प्रेशर होते हैं जैसे कि एल्बो हो गया, उसके अलावा ऑक्सीपिट हो गया सर का। ठीक है, सो दिस इज़ पेम्फिगस वल्गारिस माय सन। व्हाट डिड यू लर्न इन पेम्फिगस वल्गारिस? लयन क्विकली, सबसे पहले तो आपने ये सीखा कि सर ये सबसे कॉमन टाइप है पेम्फिगस की। ठीक है, और इसके अलावा आपने इसका लयन देखा। उससे पहले आप ये कहोगे कि सर ये म्यूकोजा पे बनता है सबसे पहले, कुछ महीने के बाद इसकी मैनिफेस्टेशन स्किन पे भी स्टार्ट हो जाती है और स्किन पे कुछ इस तरीके की पिक्चर होती है, वेसिकल्स, बुल्ला और कुछ रप्चर हो जाते हैं। ठीक है,
इस तरीके से बेटा, और इजीली रप्चर हो जाते हैं और किस तरीके से ड्राई हो जाता है, इसका फ्लूइड क्रस्टेड हो जाता है। ओके, आफ्टर पेम्फिगस वल्गैरिस इज गोइंग टू बी Pemphigus vegetans. Pemphigus vegetans is by the way rare type. Except Pemphigus vulgaris, every type of Pemphigus is rare. Keep it in your mind. Yeah, only Pemphigus vulgaris is important and one to be discussed. But by the way, Pemphigus vegetans, let me show you what happens in Pemphigus vegetans. That, yeah, what happens in Pemphigus vegetans, by the way, it is a rare type and it appears on the skin, does not appear on the mucosa like vulgaris, it appears on the skin only. और स्किन पे भी खास करके ग्रोइन रीजन में, ग्रोइन में तो ये भी डेवलप हो रही थी, ठीक है, और एक्जिला में तो मेरे ख्याल से वल्गैरिस भी डेवलप हो रही थी, बिल्कुल। फ्लेक्सुरल सरफेसेस पे सिर्फ वेजिटेंस होती है, ठीक है, फ्लेक्सुरल सरफेसेस पे वल्गैरिस नहीं होती, ठीक है। इट विल बी रॉन्ग टू से नहीं होती, नॉट रियली प्रोमिनेंट, नॉट रियली कॉमन। Okay, vegetance is kind of condition which love to, appear on the flexural surfaces more. Right, this is vegetance. Okay, now you know where does it appear, but what type of lesion appear in vegetance? The lesion which appears in case of vegetance is what like plaques. ठीक है, ये प्लेक्स होते हैं, आपने बेसिक लेजन पढ़े होंगे स्किन के बेटा, प्लेक्स क्या होते हैं, और इन प्लेक्स के ऊपर छोटे छोटे पस्चुल्स होते हैं, पस फिल्ड लेजन्स होते हैं। आपको जिस तरीके से समझें बेटा कि अगर ये प्लेक है और प्लेग के ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे पस्चूल्स होते हैं, पस फिल्ड पस्चूल्स होते हैं, ठीक है। दैट इज पेम्फिगस वेजिटेंस फॉर यू माय सन। या आई थिंक इट इज़ ईजी, नॉट रियली डिफिकल्ट, बट ओके फॉर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ मी, they must be thinking one question. I don't know it's the question in your mind or not, but still you should think about this, that we are now studying the inflammatory blistering disorders. Okay, so in every type of inflammatory blistering disorder there should be blister, na? That's why we are calling it blistering disorder. We did this pemphigus vulgaris and we saw like on the skin what happens, blisters appear, vesicles, bulla, and they rupture. But why the heck in this pemphigus vegetans are no blisters? There is formation of plaque और उसके ऊपर vesicles हैं, they are not blisters by the way. Plaques and pustules are not blisters. Then why do we study this pemphigus vegetans in the blistering disorders? Because the mechanism of every type is same beta. In pemphigus vulgaris, autoantibody is produced against desmosomes. In this pemphigus vegetans, autoantibody is produced against intercellular junction desmosome. Okay, but this is one of the reasons, and another reason is that पेम्फिगस वल्गैरिस इज़ वेरी मच कॉमन, इतनी कॉमन है कि अगर कोई भी पेम्फिगस का पेशेंट आता है तो मोस्टली वल्गैरिस के साथ आता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पेम्फिगस में जो है ब्लिस्टर्स बनते हैं, बजाय हम ये कहें कि पेम्फिगस में इसकी वल्गैरिस टाइप में ब्लिस्टर्स बनते हैं, दूसरी टाइप में जैसे वेजिटेंस में प्लेक्स बनते हैं, और जो फोलिएशियस पढ़ाऊँगा उसमें कुछ और तरह का लेजन बनता है। देन वाई स्टिल वी कैटेगराइज इट एज अ ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर? क्योंकि बेटा जो पेम्फिगस की मेन टाइप है वल्गैरिस, उसमें ब्लिस्टर्स बनते हैं, इस वजह से हम इसको नाम देते हैं ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर का। ओके, नाउ यू क्लियर विद द वल्गैरिस एंड वेजिटेंस, राइट। आफ्टर पेम्फिगस वेजिटेंस इज पेम्फिगस फोलिएशियस, बाय द वे इट इज़ वेरी रेयर अगेन, एंड फोलिएशियस इज़ नॉट रियली कॉमन, इट इज़ बाय द वे एंडेमिक इन ब्राज़ील, और वहाँ पे इसको हम फोगो सेल्वेगम कहते हैं। एवरी word in this lecture is better from your textbook Robin Species. Okay, so keep book with yourself and do follow. Endemic in Brazil, जहाँ पे इसको फोगो सेल्वेगम कहते हैं, बाकी कंट्रीज़ में ये स्पोरोटिक है और या तो होता ही नहीं है, ठीक है बेटा। और मैं फोलिएशियस के बारे में कुछ बताऊं कि ये कहाँ पे अपीयर होता है, स्कैल्प पे, ये इसके साइड्स आपको याद करनी पड़ेंगे। आई होप आई विल अटैच द निमोनिक इन द लेटर पार्ट एज वेल। स्कैल्प, फेस, चेस्ट, बैक एंड म्यूकस मेम्ब्रेन वेरी रेयरली। जो वेजिटेंस थी वो तो म्यूकस मेम्ब्रेन पे अपेयर ही नहीं हो रही थी, उससे ऊपर हमने वल्गैरिस पढ़ा, वो म्यूकस मेम्ब्रेन पे अपियर हो रहा था। बाय द वे फोलिएशियस अपियर होता है म्यूकस मेम्ब्रेन पे, बट रेयरली। ओके, आपकी जो सबसे ऊपर वल्गैरिस थी उसमें ब्लिस्टर्स बन रहे थे। वेजिटेंस में क्या होता है बेटा, प्लेग बनते हैं, उसके ऊपर पस्चूल्स होते हैं। और फोलिएशियस में क्या होता है, सुपरफिशियल एरिया ऑफ एरिथीमा एंड क्रस्टिंग, स्किन पे एरिथेमेटस लेजन होगा और स्किन क्रस्टेड होगी, कुछ इस तरीके से आप अगर देखें तो कैन यू सी द एरिया ऑफ एरिथीमा, isn't it erythematous very much
and can you see this crusting of the skin? Okay, this is the typical picture of the pemphigus foliaceus. By the way, it is endemic in Brazil. Okay, so this is erythematous and crusting as compared to pemphigus foliaceus. Yeah, number 4 type is pemphigus erythematosus. It is not a separate type of kind of pemphigus, but it is actually the less severe form of pemphigus foliaceus. Pemphigus foliaceus की less severe form को हम actually pemphigus erythematosus कहते हैं. और इसमें बेटा किस तरीके का लाइन अपीयर होता है? malar like malar area of face, लाइक इन ल्यूपस एरिथेमेटोसिस. जैसे कि SLE में बेटा सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस में क्या होता है, मलार एरिया पे जो चीक एरिया है उस पे फेस पे एक एरिथेमा डेवलप होती है ना. तो मैं आपको क्विकली पेम्फिगस एरिथेमेटोसिस दिखाऊं बेटा. ये देखें, इजंट इट लुकिंग मोर लाइक SLE ल्यूपस एरिथेमेटोसिस? इजंट इट मोर लाइक दैट? इट इज़. दिस इज़ द पेम्फिगस एरिथेमेटोसिस. दिस इज़ पेम्फिगस erythematosus, and this pemphigus erythematosus is beta less severe form of pemphigus foliaceus. Okay, pemphigus foliaceus जिसमें स्किन पे एरिथेमा होती है और क्रस्टिंग होती है, और बॉडी में ये स्कैल्प पे, फेस पे, चेस्ट और बैक पे होता है. एरिथेमेटोसिस फोलिएशियस की लेस सीवियर टाइप है, और इसमें क्या होता है, चीक्स पे, फेस पे ल्यूपस एरिथेमेटोसिस लाइक फैशन में जो है एरिथेमा होती है. ओके, उसके बाद लास्ट टाइप ऑफ पेम्फिगस इज पैरा नियोप्लास्टिक पेम्फिगस. ओके, it is not really common type of pemphigus, but it most commonly associated with some malignancies, as mentioned paraneoplastic pemphigus. So associated with what malignancies? Like non-Hodgkin lymphoma. Okay, you need to remember this for exam purpose. This is very important point data. The non-Hodgkin lymphoma ऐसी malignancy है जिसमें आपको pemphigus देखने को मिलेगा स्किन पे, खास करके paraneoplastic pemphigus. Okay, now let's discuss about the pathogenesis of the pemphigus. Okay, आपको बेटा मैं पैथोजेनेसिस बताता हूँ पेम्फिगस की. आपको इतना तो आइडिया है बेटा अभी तक कि क्यों होती है पेम्फिगस, कि बेटा जो इंटर सेल्यूलर जंक्शंस होते हैं एपिडर्मिस के अंदर, उनके खिलाफ ऑटो एंटीबॉडी बनती है, और वो सेल्स ज़ाहिर फिर सेपरेट हो जाते हैं और बीच में ब्लिस्टर बनता है. ठीक है, इसको थोड़ा तफसील में डिस्कस करते हैं. या ओके, लेट्स सपोज बेटा अगेन द सेम थिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अगेन. दीज आर लेट्स सपोज 2 polyhedral cells of epidermis. They are held together very much efficiently, very much sticky. They are with the mercy of this little structure with green color. What is this structure called? Desmosome, which is holding 2 cells of epidermis together. And you remember now what is the important protein of this desmosome? Desmoglein. By the way, there were some other proteins as well, but the most important protein of this desmosome is desmoglein protein. पेम्फिगस में क्या होता है, ये जो डेस्मोसोम है ना, खास करके इसके अंदर जो डेस्मोग्लीन प्रोटीन होती है वो डिस्ट्रॉय होती है. जब इसकी मेन प्रोटीन डेस्मोग्लीन डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो डेस्मोसोम नहीं रहेगा. डेस्मोसोम नहीं रहेगा तो ये दो सेल्स आपस में से मिले हुए नहीं रहेंगे, ये सेपरेट हो जाएंगे. ठीक है, तो अब इनके अंदर मौजूद, इस डेस्मोसोम्स के अंदर मौजूद जो डेस्मोग्लीन प्रोटीन है वो डिस्ट्रॉय कैसे होगी? एक तो ऑटो एंटीबॉडी की वजह से, ठीक है, दूसरा ये हो सकता है डायरेक्टली प्रोटीएसिस की वजह से. प्रोटीएसिस आके उस प्रोटीन को डैमेज करें. लुक, IgG auto antibody against desmoglins, or these auto antibodies directly desmoglin को अटैक ना करें, इनडायरेक्टली अटैक करें. कैसे इनडायरेक्टली? प्रोटीएसिस को एक्टिवेट करके. तो अब ये IgG एंटीबॉडी के पास, ऑटो एंटीबॉडी के पास 2 रास्ते हैं, या तो डायरेक्टली डेस्मोग्लिन को अटैक करे या तो इनडायरेक्टली अटैक करे. इनडायरेक्टली कैसे? कि ये ऑटो एंटीबॉडी जो है वो बेटा प्रोटीएस एंजाइम्स को एक्टिवेट करे, और प्रोटीएस एंजाइम क्या करेंगे? वो जाहिर है कि डेस्मोग्लिन को डिस्ट्रॉय करेंगे, प्रोटीन को. ओके, अब फ़र्ज़ करें कि इसके अंदर मौजूद जो डेस्मोग्लिन प्रोटीन है वो डिस्टर्ब हो चुकी है और ये डेस्मोसोम अब मज़ीद बरकरार नहीं रहा. तो क्या होगा बेटा? ये जो इंटर सेल्यूलर एडहेशन थी 2 सेल्स के बीच में वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और ये सेल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे. ना सिर्फ सेपरेट होंगे, उनकी जो पॉलीहेड्रल शेप है वो भी लॉस हो जाएगी, और बीच में फ्लूइड जमा होगा, और इसको हम ब्लिस्टर कहते हैं. ठीक है, okay, now onwards I will tell you
द पैटर्न ऑफ एंटीबॉडी डिपोजिशन, हमने ये कहा कि ऑटो एंटीबॉडी डिपॉजिट होती है, आपके डेस्मोग्लिन प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करती है, सेल सेपरेट होते हैं, ब्लिस्टर बनता है. एंड व्हाट पैटर्न डज आईजीजी एंटीबॉडी डिपॉजिट? लेट मी टेल यू. इन द फिश नेट पैटर्न, आपने कभी बेटा वो मछली पकड़ने वाली जाली देखी है ना? तो जैसी उसकी शेप होती है उस नेट की, बिल्कुल उसी शेप में एंटीबॉडी डिपॉजिट होती है और आपके जो इंटरसेलुलर जंक्शंस हैं उसको सेपरेट करती है. आई हैव अ वेरी गुड पिक्चर फ्रॉम योर रॉबिन स्पेसिस टू शो यू दिस फिश नेट लाइक पैटर्न. इम्यूनोफ्लोरेसेंसी पे आप देख सकते हैं, देखें. Isn't it looking more like a fish net? Isn't it looking more like a fish net to, catch the fishes? Okay, and these two are different pictures, but both are showing the fish net, you know, pattern of antibody deposition. This green part is actually representing these green nets are actually representing the antibody deposition in the epidermis at the level of the desmosomes or desmoglein. Yeah, but can you see the difference between these two? Yeah, the antibody deposition in this case is throughout the epidermis. Okay, but in this case the antibody deposition is not throughout the deposition, it is more in the superficial part. जो नीचे वाला जो epidermis का हिस्सा है उसमें नहीं है. तो बेटा ये देखो, antibodies are deposited at all the levels in case of vulgaris and vegetans, but at superficial level, especially in case of foliaceous. So this picture is representing the pemphigus foliaceus and this is representing vulgaris and vegetans. Okay, again I repeat that this green part is representing the antibody deposition और इसके पीछे जो ब्लैक पार्ट है वो एपिडर्मिस है. ठीक है, और इस पिक्चर में जो एंटीबॉडी डिपोजिशन है वो पूरी एपिडर्मिस में है. And this is the example of pemphigus vulgaris or vegetans. And here in this picture you can see the antibody deposition is not throughout the epidermis, not in all the layers of epidermis. It is at the superficial layer of the epidermis. Okay, this is the case of pemphigus foliaceus. Yeah. Okay, now let me explain you one more very important thing. That okay, why not explain it on next page. Okay, but before I go to morphology, let me explain you one more thing to have a better understanding of morphology. Okay, आप फर्ज करें कि बेटा okay, this is epidermis. Okay, this is dermis and below is everything whatever used to be subcutaneous tissue and all. Obviously this is the epidermis. This throughout this thickness is epidermis. इसकी 4 layers होंगी, स्ट्रेटम कॉर्नियम, ग्रेनुलोसम, स्पाइनोसम और बेजल लेयर. ठीक है, अच्छा चले बना लेते हैं फटाफट से. ये बन गई आपकी स्ट्रेटम कॉर्नियम, ग्रेनुलोसम, स्पाइनोसम. ठीक है, और चौथी लेयर और सबसे नीचे वाली लेयर जो है वो बेजल लेयर है. ठीक है बेटा, अच्छा अब मुझे बताओ, लेट सपोज इफ़ इट इज़ पेम्फिगस वल्गारिस और वेजिटेंस, तो फिर एंटीबॉडी डिपोजिशन कैसे होगी? एंटीबॉडी डिपोजिशन क्या सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पे होगी? नहीं. अच्छा मैं इसके कंपैरिजन में एक और पिक्चर साथ साथ बनाता हूँ. चलें, अगेन ये हो गया आपकी एपिडर्मिस. ठीक है, दिस इज़ डर्मिस. या नो इश्यूज़. ओके, दिस इज स्ट्रेटम कॉर्नियम, ग्रेनुलोसम, स्पाइनोसम एंड सबसे नीचे बेजल सेल लेयर. नाउ antibody deposition is like this. Okay, throughout the epidermis. Okay, throughout the epidermis. Yeah, and in this case you can see antibody deposition is at the superficial level only, at the level of stratum corneum. Can you tell me, this is the example of what type of pemphigus? This is pemphigus vulgaris or vegetans, and this is, I can't obviously hear to you, but I'm very much sure that you people are intelligent, whoever listening to this. This is pemphigus foliaceus, क्योंकि मैंने पीछे बताया कि उसमें सुपरफिशियल डिपोजिशन होती है एंटीबॉडी की. ओके, या सो अब जिन्हें एंटीबॉडी डिपॉजिट हो गई, उसके बाद क्या होगा? जो जंक्शंस थे वो सेपरेट हो जाएंगे और सेल सेपरेट हो जाएंगे. तो सेल सेपरेट होने के बाद दोनों में कुछ डिफरेंट तरीके से एकैंथोलिसिस होगी, यानी कि सेल्स की सेपरेशन होगी. अब इसके जो रिज़ल्ट होगा बेटा क्या बनेगा कि जो ब्लिस्टर बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा. मैं आपको बताता हूँ. देखें, ये स्ट्रेटम कॉर्नियम ऊपर,
ठीक है, ये ग्रेनुलोसम, ये स्पाइनोसम, ठीक है, ये उसके नीचे ब्लिस्टर बन गया बड़ा सा, ये नीचे जो है आपकी बेजल लेयर, ठीक है, और उसके नीचे ये डर्मिस आ गई। समझ आई बात? नहीं आई? मैं बताता हूँ, देखें। थ्रू आउट द एपिडर्मिस डिपोजिशन हुई थी एंटीबॉडी की बेटा, तो क्या होगा, सेल्स हर जगह से सेपरेट होंगे ऊपर से, ठीक है, और ऊपर वाले सेल्स सारे सेपरेट हो जाएंगे, और नीचे जो डर्मिस और बेजल लेयर है वो नीचे हो जाएगी। ये देखें, ये सारी तीनों ऊपर की लेयर्स हैं, कॉर्नियम, ग्रेनुलोसम, स्पाइनोसम, और ये बीच में बड़ा ब्लिस्टर बन गया, और बेजल लेयर ये रही, ठीक है। ये सारी ये बहुत बड़ा ब्लिस्टर बन जाएगा एपिडर्मिस की सारी लेयर्स के लेवल पे, और ये जो सबसे नीचे वाली लेयर थी बेजल लेयर ये रही, और ये डर्मिस ये रहा। क्यों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ बेटा? क्योंकि बेटा जो एंटीबॉडी डिपोजिशन है वो थ्रू आउट द एपिडर्मिस है ना, इस वजह से क्या होगा कि जो ब्लिस्टर बनेगा वो सबसे नीचे से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब आप इसको कंपेयर करेंगे तो फिर आपको समझने में आसानी होगी। इस केस में क्या होगा, जो ब्लिस्टर बनेगा वो होगा बेटा आपका सब कॉर्नियल, यानी कि एंटीबॉडी डिपोजिशन क्योंकि सबसे ऊपर एक कॉर्नियम के लेवल पे है, तो ये स्ट्रेटम कॉर्नियम है, और ये बाकी 3 लेयर्स हैं एपिडर्मिस की। तो ये जो ब्लिस्टर होगा इस लेवल पे बनेगा क्योंकि एंटीबॉडी डिपोजिशन ही इसी रीजन में थी। तो ये रही आपकी स्ट्रेटम कॉर्नियम, और ये बाकी 3 लेयर्स एपिडर्मिस की, ठीक है। अच्छा, इस केस में ब्लिस्टर जो है ये बेजल लेयर है। इस केस में जो ब्लिस्टर बना है वो सुप्रा बेजल बना है, यानी कि बेजल लेयर के ऊपर बना है, ठीक है। और इस केस में क्या हुआ, ये स्ट्रेटम कॉर्नियम है, ये सबसे ऊपर स्ट्रेटम कॉर्नियम है, ये कौन सी लेयर है बेटा, ग्रेनुलोसम, ये स्पाइनोसम, ये बेजल लेयर। इस केस में जो ब्लिस्टर है वो कॉर्नियल लेयर के नीचे बना है। इस केस में जो ब्लिस्टर है वो कॉर्नियम को छोड़ के, ग्रेनुलोसम को छोड़ के, स्पाइनोसम को छोड़ के बेजल लेयर के ऊपर बना है। इसकी क्या वजह है? इसकी बेटा वजह बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि इस केस में जो एंटीबॉडी डिपोजिशन हुई थी वो थ्रू आउट द थिकनेस ऑफ लेंथ ऑफ एपिडर्मिस हुई थी। जो ब्लिस्टर बनेगा वो तो सबसे ऊपर बनेगा क्योंकि ऊपर के सारे सेल सेपरेट हो गए हैं, तो सिर्फ नीचे से बेस रहेगी, बाकी ऊपर के सारे सेल सेपरेट हो जाएंगे और ऊपर ब्लिस्टर बन जाएगा। लेकिन इस केस में तो ऐसा नहीं हुआ। इस केस में जो एंटीबॉडी डिपोजिशन हुई है वो तो बहुत सुपरफिशियल हुई है ना, तो यहाँ के सेल्स तो सेपरेट नहीं होंगे, यहाँ के सेल्स तो अपनी जगह पे पड़े रहेंगे, नीचे ये तीनों लेयर्स पड़ी रहेंगी। सिर्फ ये है कि स्ट्रेटम कॉर्नियम ऊपर हो जाएगा, और देखें ना, ये तीनों लेयर्स अपनी जगह पे पड़ी रहेंगी, और स्ट्रेटम कॉर्नियम के सेल्स सेपरेट हो जाएंगे क्योंकि एंटीबॉडी डिपोजिशन बहुत सुपरफिशियल हुई है। स्ट्रेटम कॉर्नियम के लेवल पे हुई है, तो स्ट्रेटम कॉर्नियम के सेल्स सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और बीच में ब्लिस्टर बन जाएगा, ऊपर स्ट्रेटम कॉर्नियम और ब्लिस्टर के नीचे बाकी 3 लेयर्स होंगी एपिडर्मिस की, ठीक है। तो इन दिस केस द ब्लिस्टर फॉर्मेशन इज सब कॉर्नियल, कॉर्नियम के नीचे, एंड इन दिस केस द ब्लिस्टर फॉर्मेशन इज सुप्रा बेजल, अबव द बेजल लेयर। या आई होप इट इज क्लियर टू यू, but further you read this part, morphology part, and you will have better understanding. अच्छा, जितनी भी टाइप्स हैं पेम्फिगस की, इन ऑल टाइप्स ऑफ पेम्फिगस देयर इज एकांथोलिसिस। व्हाट इज एकांथोलिसिस? इट इज़ द डिसोल्यूशन और लाइसिस ऑफ इंटरसेल्युलर ब्रिजेस बिटवीन स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस। इसमें कोई शक नहीं है कि जो स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स है स्किन के, जो केराटिनोसाइट्स हैं, जो 2 सेल्स हैं एक्चुअली एपिडर्मिस के, उनके बीच में जो इंटरसेल्युलर ब्रिजेस थी वो डिसॉल्व हो गई हैं, वो लॉस हो गई हैं, जिसकी वजह से सेल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, एंड आल्सो सेल्स लूज देयर पॉलीहेड्रल शेप एंड दे बिकम राउंडेड। इन केस ऑफ पेम्फिगस वल्गारिस एंड वेजिटेंस जो एकांथोलिसिस होती है वो सुप्राबेजल होती है। ये देखें, बेजल लेयर अपनी जगह पे, बेजल लेयर अपनी जगह पे, और उसके ऊपर एकांथोलिसिस हुई है। इसकी वजह क्या है बेटा? इसकी वजह यह है कि एंटीबॉडी डिपोजिशन पूरी लेयर ऑफ पूरी थ्रू आउट द एपिडर्मिस हुई है। तो यहाँ इस लेयर पे भी एकांथोलिसिस होगी, इस लेयर पे भी होगी, इस लेयर पे भी एकांथोलिसिस होगी, तो इस पूरे लेवल पे ब्लिस्टर बनेगा, और नीचे क्या रह जाएगा? सिर्फ बेजल लेयर रह जाएगी क्योंकि वो सबसे नीचे है, ठीक है। इन केस ऑफ पेम्फिगस वल्गारिस एंड वेजिटेंस एकांथोलिसिस, दैट इज सेपरेशन ऑफ सेल्स एंड ब्लिस्टर फॉर्मेशन अकर्स सुप्रा बेजल, ओके। एंड इन केस ऑफ पेम्फिगस foliaceus there is subcorneal acantholysis, that is just below the stratum corneum. This is the blister formation stratum corneum के just नीचे, ओके। एंड द ब्लिस्टर इज एट द लेवल ऑफ स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। हाँ, क्योंकि इसकी बेस जो है इस ब्लिस्टर के स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम है ना, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम के ऊपर है ये ब्लिस्टर और स्ट्रेटम कॉर्नियम के नीचे है, ओके। बट स्टिल माई सन, आई होप you are clear with this tricky concept. Let me try again in some easy words that
In this case, antibody deposition is throughout the epidermis, but in this case, antibody deposition is only at the superficial level. Okay, क्योंकि इसमें थ्रू आउट एंटीबॉडी डिपोजिशन हुई है, इस वजह से ऊपर की सारी लेयर्स पे एंथोलिसिस होगी, सेल सेपरेट होंगे, ऊपर पूरा ब्लिस्टर बनेगा, नीचे आपकी बेजल लेयर रह जाएगी. इस केस में क्योंकि एंटीबॉडी डिपोजिशन बिल्कुल सुपरफिशियल लेवल पे हुई है, इस वजह से सिर्फ स्ट्रेटम कॉर्नियम के जो सेल्स हैं वो सेपरेट होंगे और ऊपर हो जाएंगे, बाकी सेल्स तो अपनी जगह पे पड़े रहेंगे. इस वजह से ब्लिस्टर जो है वो सब कॉर्नियल बनेगा इस केस में. ठीक है, आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर नाउ. ओके, फ्यू मोर पॉइंट्स बेटा फ्रॉम मॉर्फोलॉजी दैट इन केस ऑफ पेम्फिगस वल्गारिस, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, क्योंकि पेम्फिगस वल्गारिस ऐसी टाइप है जिसमें एंटीबॉडी डिपोजिशन थ्रू आउट होती है. In case of Pemphigus vulgaris, single layer of basal cells, it is forming the blister base. Obviously, you can see beta, this is the blister and this is the basal layer. This is the basal layer, okay? Isn't it forming, isn't it the single layer? It is single basal layer and it is forming the base of the blister, okay? And this single layer, this single basal layer is looking more like a row of tombstones. Row of tombstones, what does it mean? Let me show you, let me actually discuss about it. Okay, now can you see in this picture? To have a better view, let me just, yeah. Okay, beta, this is a typical astrological picture of Pemphigus vulgaris, in which you see this part is representing all above three layers: stratum corneum, granulosum and spinosum. This is the blister and this is the thin basal layer. ऐसा ही मैंने बताया था. और ये बेजल लेयर के जो सेल्स हैं वो एक सेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये कुछ सिंगल लेयर बना रहे हैं पूरी. और कुछ ये जो टॉम्ब स्टोन्स होते हैं ना बेटा, टॉम्ब स्टोन्स ग्रेवयार्ड में, तो देखें ये एक बेजल सेल है, ये दूसरा बेजल सेल है, ये तीसरा बेजल सेल है, चौथा बेजल सेल. ये है, आप ये बिल्कुल देखें बेटा, ये जो आपका ब्लिस्टर है, ब्लिस्टर की जो बेस है ना, ये बेजल सेल्स हैं. और ये बेजल सेल्स की जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से है कि एक सेल, दूसरा सेल, दूसरा, तीसरा सेल, बिल्कुल इस तरीके से हैं जैसे ये टॉम्ब स्टोन्स होते हैं. एक बेजल सेल, दूसरा बेजल सेल, तीसरा, चौथा. ठीक है, ओके. इन ईच टाइप ऑफ, ओके, नाउ यू आर क्लियर सो फार बेटा. ओके, what else to be discussed in morphology? That in each type of Pemphigus vulgaris or vegetans or whatever, there is superficial dermal infiltration by lymphocytes, macrophages and eosinophils. Because it is inflammatory type, obviously Pemphigus is inflammatory blistering disorder, so there have to be inflammatory cells, okay, especially at the superficial dermal level, right? The treatment of this particular disease is beta immunosuppressive agents, because you can see it is autoantibody mediated destruction of the intercellular junctions. So to stop those autoantibodies from producing destruction, you need to provide the patient with immunosuppressive agents, okay? We are now done with Pemphigus beta. The next thing is, next inflammatory blistering disorder is bullous pemphigoid. Bullous pemphigoid beta, what happens, by the way, as compared to Pemphigus, it occurs in elder individuals in old age, okay? Beta, before I tell you where do they appear on the skin and the mucosa, let me tell you how does its lesion look like. Its lesion is actually tense, big bulla, tense, big bulla, which are hard, okay? They do not rupture. By the way, they appear on the inner aspect of thigh, flexor surfaces of forearm. By the way beta, can you please let me know a little question for you? Can you let me know what type of Pemphigus was appearing on the flexural surfaces we discussed just before? Okay, by the way, they appear on the axilla as well, groin, lower abdomen in case of skin, okay? But they do appear on the oral mucosa in 10 to 15% individuals after skin lesions. अभी तक बेटा दो बड़े डिफरेंस मैंने पेम्फिगस और बुलस पेम्फिगॉइड में आपको बताए हैं, और वो दो बड़े जो डिफरेंसेस हैं, वो एक तो डिफरेंस अभी तक हमने ये देखा कि पेम्फिगस के केस में क्या हो रहा था, जो लेजन था वो पहले मिकोजा पे बनता था, उसके कुछ महीनों के बाद स्किन पे मैनिफेस्ट होता था. बुलस पेम्फिगॉइड के केस में क्या होता है कि लेजन पहले स्किन पे बनता है और मिकोजा पे बाद में बनता है. लेकिन अपीयर आफ्टर स्किन लेजन्स, ओके? ये पहला फ़र्क. और दूसरा फ़र्क ये होता है बेटा कि पेम्फिगस वल्गारिस, सॉरी, पेम्फिगस का जो लेजन होता है, जो ब्लिस्टर्स होते हैं वो ईजिली रप्चर कर जाते हैं, लेकिन बुलस पेम्फिगॉइड के जो लेजन होते हैं वो रप्चर नहीं करते. ठीक है, ये बहुत टेंस बुल्ला होते हैं. आपको लगता है कि ये ईजिली रप्चर करेंगे बुल्ला? नो.
Okay, so these two differences are very much important. Let's have a look at the pathogenesis of bullous pemphigoid. पेम्फिगस में तो बेटा ये हो रहा था कि डेस्मोजोम्स के अंदर मौजूद जो डेस्मोक्लीन प्रोटीन होती है उसके खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं, बट इन केस ऑफ बुलस पेम्फिगोइड इट इज़ अ लिटिल डिफरेंट. द ऑटो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द BAPAG2, that is bullous pemphigoid antigen 2. It is component of hemidesmosomes which adhere the basal cells to basement membrane. Okay, can you see beta if I again explain you that let's suppose this is the basal cell layer, okay, and below is the dermis. What connects basal cell layer to this dermis? Or even basement membrane, if I say, yeah, if I don't call it dermis, if I call it basement membrane, that's going to be much better. So if you consider this is the basal layer of cells in the epidermis and this is basement membrane, and you should remember beta what connects what connects basal cell layer to basement membrane. What are these structures called? These are hemidesmosomes, as I discussed on the previous pages. Hemidesmosomes, okay. And you remember what are the two important proteins of hemidesmosomes? BAPAG1 and BAPAG2. Bullous pemphigoid antigen 1 and antigen 2. In case of bullous pemphigoid, what happens? Autoantibodies are produced against this BAPAG2, which is a component of hemidesmosome, which adhere the basal layer to basement membrane, okay. And autoantibodies are actually deposited not in the fishnet like pattern like pemphigus. They deposit in the linear pattern at the dermoepidermal junction, okay. Okay, you can now see you can now say like look, this is basal cell layer of the epidermis, this is basement membrane, and below this is dermis. So actually autoantibodies deposit like this, like this. Isn't it covering the dermoepidermal junction? This is dermis, this is epidermis, okay, and these are the antibodies. So they are actually deposited at the dermoepidermal junction, especially in the dermal papilla. आपको मैं बताऊं बेटा कि ये एपिडर्मिस कुछ इस तरीके से होती है, ये रेटी रेजिस होती हैं, ठीक है, ये और नीचे जो है ये आपका डर्मिस है, ठीक है. दिस इज एपिडर्मिस बाय द वे, दिस इज़ एपिडर्मिस, और ये एपिडर्मिस का पार्ट जो नीचे डर्मिस में आता है उसको हम रेटिरिजिस कहते हैं, और ये पूरा डर्मिस है आपका, और ये डर्मिस का पार्ट जो ऊपर एपिडर्मिस में जाता है इसको हम क्या कहते हैं? इनको हम डर्मल पेपिला कहते हैं. और ये एपिडर्मिस है आपकी नीचे ऊपर, और ये डर्मिस है, ओके. और ये डर्मो एपिडर्मल जंक्शन हो गया. इस डर्मो एपिडर्मल जंक्शन पे बेटा आपकी ऑटो एंटीबॉडीज़ डिपॉजिट होती हैं, ठीक है, और आपके इस हेमीडेस्मोसोम के अंदर मौजूद BAPAG2 को डिस्टर्ब करती हैं. बेटा जब इस डर्मो एपिडर्मल जंक्शन पे खास करके इस डर्मल पेपिला पे ये एंटीबॉडीज़ डिपॉजिट होती हैं, ऑटो एंटीबॉडीज़, तो फिर क्या होता है? इनकी डिपोजिशन से कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होती है. देखिए एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है एट द लेवल ऑफ डर्मल पेपिला, और फिर कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होती है, और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के बाद इन्फ्लामेटरी सेल्स पहुंच जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स और ईस्नोफिल्स. और ये इन्फ्लामेटरी सेल्स बेटा क्या कराएंगे? ज़ाहिर इन्फ्लामेशन और डिस्ट्रप्शन ऑफ एपिडर्मल अटैचमेंट, ओके. या क्लियर बेटा? वेरी मच क्लियर, very much clear, okay. What did I say? Autoantibodies, they especially are present at the dermoepidermal junction, okay, dermoepidermal junction, and they are destroying this hemidesmosome, और उसके अंदर भी मौजूद BAPAG2 protein, okay. Yeah. And if I talk about the morphology of the lion is actually tense bulla. I showed you the picture, and it is filled with the clear fluid. It is less than 2 centimeter in diameter, but it can reach up to 4 centimeter or 8 centimeter, like this much tense, this much larger, okay. And it does not rupture easily, and it heals without scarring, by the way, बट अनलेस दे बिकम इन्फेक्टेड सेकेंडरीली. अगर इसके ऊपर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर तो बेटा ये हील कर जाएगा, लेकिन ऊपर निशान रह जाएगा, इसको हम स्कैरिंग कहते हैं. लेकिन इसके ऊपर कोई सुपर इन्फेक्शन नहीं हो रहा, जो कि इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, एंड इनके ऊपर इन्फेक्शन हो ही जाता है, और अगर इन्फेक्शन नहीं होता बेटा तो फिर ये हील कर जाते हैं विदाउट स्कैरिंग, ओके. या few more things beta about your bullous pemphigoid. That inflammatory infiltrates I mentioned you, due to complement activation,
these inflammatory cells along with those neutrophils, yeah, lymphocyte, eosinophils and lymphocytes, they do appear. Again, if I draw the same picture here, that if let's suppose easily like this is epidermis, this is here you have dermis, okay, and this is the dermoepidermal junction. Especially in between is the basement membrane. This is epidermis, this is dermis, okay. एट दिस डर्मो एपिडर्मल जंक्शन एंटीबॉडीज डिपॉजिट, और इसी लेवल पे आपके हेमिडेस्मोसोम्स मौजूद है ना बेटा। तो इस लेवल पे जहाँ पे एंटीबॉडी डिपोजिशन हुई है ग्रेनुलर पैटर्न में, यहीं पे कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होती है। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के बाद इन्फ्लामेटरी सेल्स आते हैं, ठीक है बेटा, और वो इन्फ्लामेशन को ट्रिगर करते हैं, ओके। एंड इन्फ्लेमेशन के बाद क्या होगा, ऑब्वियसली सुपरफिशियल डर्मिस के लेवल पे एडिमा हो जाएगा और बेजल सेल लेयर्स पे वैक्यूलाइजेशन हो जाएगी, सेल्स सेपरेट होने लगेंगे। सेल्स के सेपरेट होने के बाद बीच में स्पेस बन जाएगी जिसको हम ब्लिस्टर कहेंगे या वैक्यूलाइजेशन कहेंगे, ओके। सो एक्चुअली वैक्यूलाइजेशन इज द सेपरेशन ऑफ द सेल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ लिटिल स्पेस बिटवीन द सेल्स, जिसमें फ्लूइड फिल्ड होगा और ब्लिस्टर बनेगा, ओके। So this is about the bullous pemphigoid, and the last inflammatory blistering disorder is your dermatitis herpetiformis, okay. Mera dermatitis herpetiformis is, yeah, it is an inflammatory blistering disorder of skin. It affects males more commonly in the 3rd and 4th decade, and it occurs in association with celiac disease in some cases, okay. How in celiac disease, I will surely discuss about it in pathogenesis, by the way. लेकिन dermatitis herpetiformis फर्स्ट करें किसी को हो गई तो उसकी स्किन पे क्या लेयन बनेगा बेटा, एक्सट्रीमली प्रूरिटिक प्लेक्स एंड वेजिकल्स, ओके। प्लेक्स और वेजिकल्स अगर मैं क्विकली दिखा भी दूँ तो बेटा ये छोटे से आपको वेजिकल्स दिख रहे हैं ना, आई होप दीज वेजिकल्स, ओके, these vesicles, and isn't it more like a plaque? Isn't it more like a plaque? So plaques or vesicles, they do appear on the skin in case of dermatitis herpetiformis, okay, and it is associated with celiac disease. We'll talk about pathogenesis and later you will understand that how this disease is appearing. एक्चुअली बेटा क्या होता है कि जो IgA एंटीबॉडी बनती है आपके डाइटरी ग्लूटेन के अगेंस्ट, आपने सीलिएक डिजीज़ ऑब्वियसली पढ़ी होगी GIT में, तो जब आप ग्लूटेन लेते हो तो उसके खिलाफ IgA एंटीबॉडी बनती है। सब में नहीं, जो जेनेटिकली ससेप्टेबल इंडिविजुअल होते हैं, HLA कैरियर होते हैं, उनमें IgA एंटीबॉडी बनती है, और वो IgA एंटीबॉडी जो एक्चुअली ग्लूटेन के अगेंस्ट बन रही थी, वो क्रॉस रिएक्ट कर जाती है आपके बॉडी में मौजूद रेटिक्यूलिन के खिलाफ। अब ये रेटिक्यूलिन क्या है मैं आपको क्विकली बता दूँ कि बेटा आपको पता होगा कि ये दोबारा से एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे चलें फ़र्ज़ कर लें ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके नीचे ये डर्मिस है, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं जो दो सेल्स है एपिडर्मिस के, उनको आपस में कौन जोड़ता है, डेस्मोसोम। अच्छा मुझे बताएं कि जो एपिडर्मिस की सबसे नीचे वाली लेयर है बेजल लेयर, उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन से कौन कनेक्ट करता है, ये हेमीडेस्मोसोम, ओके, हेमीडेस्मोसोम। अच्छा मुझे बताएं बेसमेंट मेम्ब्रेन को डर्मिस से कौन कनेक्ट करता है, एंकरिंग फिलामेंट्स। इन एंकरिंग फिलामेंट्स में जो मेन प्रोटीन होती है बेटा वो है आपकी रेटिक्यूलिन, ओके। तो इन केस ऑफ डर्मेटाइटिस herpetiformis, those autoantibodies, actually IgA autoantibody, cross react with reticulin protein, the main protein of the anchoring filament, okay, that is connecting the basement membrane to the superficial part of the dermis. और बेटा जाहिर है जब एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट बनेगी रेटिकुलिन प्रोटीन ऑफ द एंकरिंग फिलामेंट, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगी, इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स आएंगे और वो क्या करेंगे, ये जो कनेक्शन है बेटा एंकरिंग फिलामेंट्स का जो कि कनेक्ट कर रहा है आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन को डर्मिस के साथ, वो ज़ाहिर डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और आपकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है और जो डर्मिस है वो सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से अगर ये आपकी फ़र्ज़ करें एपिडर्मिस है और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये एपिडर्मिस है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये रही आपकी डर्मिस, ओके। अब ये सेपरेट हो गई आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन डर्मिस से। क्यों सेपरेट हो गई डर्मिस से, उसकी वजह क्या है बेटा, जो बीच में एंकरिंग फिलामेंट्स थे उनकी जो मेन प्रोटीन थी रेटिकुलिन वो डिस्टर्ब हो गई है। क्यों डिस्टर्ब हो गई है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स की वजह से और प्रोटियासिस की वजह से। अच्छा ये क्यों आए, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन की वजह से। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन क्यों हुई, इस एंटीबॉडी के डिपॉजिट होने की वजह से, ठीक है। तो इसका ज़ाहिर है बेटा सब एपिडर्मल ब्लिस्टर बनेगा। ये देखें बीच में ब्लिस्टर नहीं बनेगा,
ये एपिडर्मिस के नीचे ये स्पेस जो बनी है इसमें ब्लिस्टर बनेगा। इजंट इट द सब एपिडर्मल ब्लिस्टर? ऑब्वियसली इट इज सब एपिडर्मल ब्लिस्टर, या। और इसका बेहतरीन हल ये है कि बेटा ग्लूटेन फ्री डाइट का इस्तेमाल किया जाए। ओके, इसका मॉर्फोलॉजी पार्ट क्विकली डिस्कस करते हैं। ऑटो एंटीबॉडी जो IgA है वो डिपॉजिट होती है अपनी जगह पे अगेंस्ट द रेटिकुलिन प्रोटीन, और वहाँ पे इंजरी होती है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है, जिसमें न्यूट्रोफिल्स आते हैं, फाइब्रोब्लास्ट आते हैं जो कि फिब्रिन बनाते हैं। दे डिपॉजिट एट द टिप्स ऑफ द डर्मल पेपिला, दे डिपॉजिट एट द टिप्स ऑफ डर्मल पेपिला। वाटर डर्मल पेपिला मैंने पीछे भी बताया, यहाँ पे भी क्विकली बता देता हूँ। फर्स्ट करें ये एपिडर्मिस है, ठीक है, और ये एपिडर्मिस के रेटिरेजेस हैं, ठीक है। ये फ़र्ज़ करें नीचे डर्मिस है, ओके। सो दिस इज़ रेटिरेजेस, द एपिडर्मिस कमिंग डाउन, एंड दिस अपफोल्ड, दिस पार्ट ऑफ डर्मिस गोइंग इनटू एपिडर्मिस, दिस इज़ कॉल्ड डर्मल पेपिला। और ज़ाहिर है बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन भी इसी लेवल पे होगी, ठीक है ना। तो डर्मल पेपिला के लेवल्स पे आपकी जो ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं वो डिपॉजिट होती हैं, और वहीं पे फिर ज़ाहिर है कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगी, और यहीं पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स आएंगे, न्यूट्रोफिल्स आएंगे, और वो न्यूट्रोफिल्स कलेक्ट होते हैं यहाँ पे, और उन कलेक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स को हम कहते हैं माइक्रो एब्सिसेस, ठीक है। और जाहिर सी बात है फिर अल्टीमेटली बेटा वो जंक्शन सेपरेट हो जाएंगे आपस में, और ये जो डर्मिस है वो नीचे हो जाएगी, एपिडर्मिस ऊपर हो जाएगी, और यहाँ पे वैक्यूलाइजेशन क्रिएट हो जाएगी और सब एपिडर्मल ब्लिस्टर बन जाता है। और ये स्किन पे खास करके किस जगहों पे मैनिफेस्ट होता है? एक्सटेंसर सरफेसेस पे बेटा, नॉट एट द फ्लेक्सुरल सरफेसेस बट एट द एक्सटेंसर सरफेसेस। एल्बो पे, नी पे, अपर पार्ट ऑफ द बैक एंड buttocks. Okay, so what did we do so far? Inflammatory blistering disorders of skin, जिसमें हमने सबसे पहले किया पेम्फिगस, पेम्फिगस के बाद किया बेटा हमने बुलस पेम्फिगोइड, उसके बाद हमने किया डर्माटाइटिस herpetiformis. So we are now done with the inflammatory blistering disorders. In the next lecture I will talk about non-inflammatory blistering disorders, जिसमें क्या क्या आता है? एपिडर्मोलिसिस बुलोसा और पोरफायरिया. Okay, that's all about today's lecture. Thank you beta. Class dismissed.